Good morning, students. The next lecture that we'll be studying in embryology is the structure of the stamen, and with that, we have to study the terminologies that are used in regarding with the stamen. In the first slide itself, you can see the whole structure of the stamen or the microsporophyll. The stalk portion here is called as the filament, and the lobes here that you can see is called the anther. So anther along with filament we refer to as the stamen. If we take the section of this anther, we can see 4 pollen sacs or the microsporangia in which the pollens are produced by the process of microsporogenesis, which we'll be studying in the further classes. So these are, I have tried to make it a little bright. So stamen or androecium, you can see here, ये original picture में जो है दिखाया है, this is the anther. The yellow thing that you can see is the pollen which have come out after the dehiscence of the anther. These are the filaments. So all together the stamen. So it is a male sexual organ. Okay. Most of the time it is made up of 2 chambers. Sometime it is called as the dithecus, and sometime it is made up of 2 chambers called as the monothecus, which is the identifying feature of the family that you have studied last year. That is the China rose family, the Malvaceae. ठीक है, monothecus होते हैं उसमें आपके जो stamen है. Now this is the electron microscope structure. Here the anther wall is broken and these are the pollen grains that you can see. Okay. So androecium or stamen, if we have to study, there are certain features or certain types, terminologies which we have to study or we should know when we start to study the stamen. Roughly it is divided into 4 parts, or rather I have included one more slide, the type of dehiscence of the anther. So here first type is based on the number. Okay, then is the cohesion and then adhesion of stamen, and then the anther, attachment of anther to the filament. So one by one we'll be seeing. So first is depending upon the length of the filament. You have studied these 2 families last year, Lamiaceae and Brassicaceae. Brassicaceae आपने पढ़ा था, ब्रासिका सरसों है ना, उसका प्लांट पढ़ा था. और लैमिएसी यानी कि सैल्विया या तुलसी जो था, डायडाइनमस थी उसमें कंडीशन. डायडाइनमस का मतलब होता है ऑल टुगेदर देर आर 4 स्टेमन, आउट ऑफ विच 2 are longer in the outer wall and 2 are smaller in the inner wall. और tetradaenomus में क्या होता है, 4 are long and 2 are short. The 4 that are longer are inner wall and the 2 that are shorter form the outer wall. Example, Diadeinomus is Lamiaceae and Tetradaenomus Brassicaceae. Now according to number of stamen, it can be definite number of stamen or it can be indefinite number of stamens. Definite में 1 stamen हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, मतलब तुम काउंट कर सकते हो. 6 तक आते आते या 8 या 10 तक आते आते उसके बाद फिर हम उसको इंडेफिनेट में डाल देते हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन कि कितने हैं, मोनैंड्रस कंडीशन बोल सकते हैं, एक ही स्टेमन होता है, डायैंड्रस, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, लाइक दैट, हेक्सा. ओके. एंड इनडेफिनेट में न्यूमरस स्टेमन होते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉलीएंड्रस कंडीशन. इनडेफिनेट कंडीशन, ये सबसे प्रिमिटिव फैमिली जो आपके मैग्नोलिएसी या आपकी रननक्यूलेसी जो आपने पढ़ा है पिछले साल, उसके अंदर इनडेफिनेट नंबर जो है वो प्रेजेंट होते हैं स्टेमन के. Now if you see the cohesion of stamen,
सो द कोहेशन ऑफ स्टेमन दो तरीके से होता है, या तो एंथर पार्ट फ्यूज करता है या तो फिलामेंट पार्ट फ्यूज करता है, राइट। अब अगर पहला है, अगर फिलामेंट फ्यूज करता है, ठीक है, एंथर जो होते हैं वो फ्री होते हैं, फिलामेंट्स आर यूनाइटेड, दिस कंडीशन इज रेफर्ड एज एडल्फस कंडीशन। Okay, if the filaments are united and anthers are free, it is called as Adolphus condition. And depending upon how many bundles the filaments are making by uniting, जोड़ करके फिलामेंट कितने बंडल बना रहे हैं, तो अगर एक बंडल बनाते हैं जैसे यहाँ पे है मालवेसी फैमिली में, उसको बोला जाता है मोनो एडल्फस कंडीशन। सो दे यूनाइट टू फॉर्म वन बंडल, चाइना रोज। सेकेंड है डाईएडल्फस, इन दिस टू बंडल्स आर फॉर्म्ड। पी प्लांट में ये बहुत क्लियर देखा जाता है, ये जो है ये 9 स्टेमन्स होते हैं और एक जो होता है ये फ्री होता है, 9+1 कंडीशन, राइट। सो ये पी में होता है डाईएडल्फस कंडीशन। एंड देन पॉलीएडल्फस कंडीशन। पॉलीएडल्फस कंडीशन में क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं, राइट, और ये 2 से ज़्यादा होते हैं, इसलिए पॉलीएडल्फस। सो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल सिट्रस फैमिली में आता है, लेमन फैमिली में, उसमें आप बड़ी क्लियरली जब भी आपको कोई फ्लावर मिलेगा, ट्राई टू ऑब्जर्व द बंडल्स ऑफ द स्टेमन्स। ओके, सो एडल्फस मीन्स द फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड। नेक्स्ट इज द opposite condition where the filaments are free and anthers are united। ये sunflower में बहुत अच्छी एक इसका जो है एग्जाम्पल है, इसको बोलते हैं syngenesious condition। तो एंथर जो होता है वो सारे जुड़ कर के एक ऐसी ट्यूब सी बना देते हैं गोल सी, और ये फ्री रहते हैं, और इस ट्यूब के बीच में से जो स्टाइल है वो निकलती है, राइट। एक गोला सा बन जाता है सारे एंथर जब जुड़ जाते हैं तब। और सिंजिनेशियस कंडीशन इन सनफ्लावर, या हम एस्टरेसी फैमिली में बोलते हैं, इट्स एन आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ एस्टरेसी फैमिली कि वहाँ पे जो है सिंजिनेशियस कंडीशन मिलती है देखने को। तो ये वर्ड आपको पता होना चाहिए कि क्या मतलब है इसका। फिर आता है सिनेंड्रस कंडीशन। सिनेंड्रस कंडीशन होता है कि स्टेमन में जो एंथर और जो फिलामेंट है वो पूरा का पूरा आपस में जुड़ा होता है। स्टेमन्स फ्यूज्ड ऑल थ्रू देयर लेंथ, फिलामेंट भी फ्यूज होते हैं, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, और जो एंथर होते हैं वो भी फ्यूज कर जाते हैं, इस तरीके से ऐसे कंड्यूलेटिंग इस तरीके से शेप बनती है। और ये भी एक आइडेंटिफाइंग फीचर है कुकुरबिटेसी फैमिली का, ठीक है। तो कभी भी आपको अगर कोई ऐसे बेल मिलती है जिसमें मेल फ्लावर लगे होते हैं, ट्राई टू ओपन द फ्लावर एंड सी द सिनेंड्रस कंडीशन ऑफ द reproductive part. Now we see the adhesion of stamen। adhesion of stamen क्या होता है कि स्टेमन किस तरीके से फ्लावर में लगे हुए हैं, फ्लावर के पेटल में लगे हैं, टपल में लगे हैं, सेपल में लगे हैं, है ना, या गाइनीशियम से जुड़े हैं। तो ऐसे कंडीशन को हम एडेशन ऑफ स्टेमन के अंडर पढ़ते हैं, और इसके अंदर जो बहुत कॉमन देखने को मिलती है दैट इज कॉल्ड एज दी एपीपेटलस एंड एपीसेपलस कंडीशन। एपीपेटलस कंडीशन क्या होता है, जब पेटल के ऊपर इंसर्टेड होते हैं, जैसे कि हमारा सोलानम नाइग्रम, राइट, ये ब्रिंजल जो है ये गलत लिखा है, सोलानम नाइग्रम जो है उसके अंदर, यानी सोलोनेसी का जो मेन फीचर है, या आप एपोसाइनेसी का देखो, है ना, इसमें ये फीचर्स हैं कि जो स्टेमन है ये पेटल में से ही निकलते हैं, नीचे नहीं जुड़े होते हैं, वो पेटल में से निकल रहे होते हैं। फिर एपीसेपलस एज द नेम सेज कि सेपल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, वर्बीनिया इसका अच्छा एग्जाम्पल है, राइट। फिर हम आते हैं एक और कंडीशन में जिसके अंदर जो आपका स्टेमन है वो जुड़ा होता है ये वाले ऊपर स्टिग्मा पोर्शन का, गाइनीशियम के स्टिग्मा पोर्शन पे। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं गाइनेंड्रस। गाइनीशियम से निकला गाइन, और एंड्रस मतलब कि स्टेमन। ओके, तो स्टेमन जो है एंथर का जो चैम्बर होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, एक पोलन किट बनाते हैं जिसको पोलिनिया बोला जाता है ना। और वो पोलिनिया जो है
अटैच होता है स्टिग्मेटिक डिस्क पे। सो ये स्टिग्मेटिक डिस्क है, और ये जो है ये तो हुड और कॉलम वगैरह सारे ऐसे बने होते हैं कोरोना टाइप, और यहाँ पे पोलिनिया किट जो होती है वो बनी होती है, ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये बहुत अच्छा आप इसमें देख सकते हैं कैलाट्रोपिस में, या एस्क्लिपियास जो है इन प्लांट्स में जो है बहुत क्लियर गायनेंड्रस कंडीशन जो है मिलती है। नेक्स्ट जो है हमारा अटैचमेंट ऑफ एंथर टू दी फिलामेंट, की जो एंथर का पोर्शन है वो फिलामेंट के साथ किस तरीके से जुड़ा हुआ है, राइट। तो अगर फिलामेंट नीचे से यहाँ से ही जुड़ा हुआ है तो हम उसको बोलते हैं बेसिफिक्स। ओके, बेसिफिक्स जैसे सोलानम स्पीशी है, या इनेट कंडीशन। फिर दूसरी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो फिलामेंट जो है वो एक्सटेंड हो जाता है दो एंथर लोब के बीच में, और इसको बोला जाता है एडनेट कंडीशन। एडनेट कंडीशन एग्जाम्पल माइकीलिया चंपका, राइट। तो थर्ड पोर्शन ये है अटैचमेंट जो डॉर्सल, यानी कि एंथर को आप उल्टा करेंगे तो पिछली तरफ से जो फिलामेंट है वो यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा होता है, डॉर्सल पार्ट से। इसको बोलते हैं डॉर्सिफिक्स्ड कंडीशन। बोहेनिया वेरिगेटा में, या कचनार जो आप लोग बहुत फॉन्ड हो उसके, राइट, तो वो बेसिफिक्स है। देन वर्सेटाइल एक कंडीशन होती है, इसमें फिलामेंट जो है वो अटैच होता है, पीछे ही अटैच होता है जैसे यहाँ पे होता है, बट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज very small and the anther lobes are very much elongated, so anther lobes keep on dangling on this filament. Okay, they swing freely. तो जितने भी ग्रामिनेसी मेंबर हैं या लिलिएसी मेंबर हैं उनके अंदर जो है हमें वर्सेटाइल फिलामेंट जो है वो मिलता है, राइट। फिर इसके बाद ये लास्ट स्लाइड जो है हमारी, ये है टाइप ऑफ डिहाइसेंस ऑफ एंथर। व्हेन एंथर मैच्योर्स एंड द पोलन ग्रेन्स आर कंप्लीटली फॉर्म्ड, एट दैट टाइम द एंथर हैज टू रप्चर सो दैट द पोलन ग्रेन्स आर लिबरेटेड आउटसाइड, है ना, बाहर जाना चाहिए उनको। सो अंदर की तरफ से, ठीक है, फ्लावर की फेसिंग यानी गाइनीशियम फेसिंग वो अंदर की तरफ होता है, उस तरफ से अगर लॉन्जिट्यूडनल स्लिट अगर आती है तो उसको बोलते हैं इंटरोज लॉन्जिट्यूडनल डिहाइसेंस। और अगर साइड में से आती है तब उसे बोलते हैं लेटरोज लॉन्जिट्यूडनल डिहाइसेंस। एक्सट्रोज अगर होती है कि ऊपर वाले पार्ट में अगर पूरा का पूरा टूटता है तो एक्सट्रोज लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन। फिर इसके बाद आता है आपका ट्रांसवर्स सेक्शन, ये ट्रांसवर्स सेक्शन हो गया। फिर ऊपर यहाँ पे पोर्स बनते हैं कई, ये धतूरा में आप देखना बहुत क्लियर नजर आता है, धतूरे के फ्लावर में ऊपर की तरफ पोर्स बने होते हैं वेरी प्रोमिनेंट, सो इट इज कॉल्ड एज द पोरस। एंड सम टाइम वेल्व्स आर फॉर्म्ड, सो इस तरह से वेल्व निकलते हैं ऊपर को और पोलन्स जो हैं वो फ्री हो जाते हैं, राइट। सो ये भी आपको पता होना चाहिए कि एंथर डिहाइसेंस जो है वो किस तरीके से हो सकता है। नाउ रिगार्डिंग द क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक, इसके अंदर बेसिकली जो स्पेशल टर्म्स हैं जैसे सिंजिनीशियस हो गया, सिनेंड्रस हो गया, मोनोडेल्फस कंडीशन हो गया, है ना, और टाइप्स ऑफ फिक्सेशन हो गया, कोहेशन हो गया, एडिशन हो गया कि कोहेशन एडिशन के बारे में लिखो। तो इस तरह के क्वेश्चन यानी एक एक स्लाइड पे एक एक क्वेश्चन बन सकता है ना। तो आप जो है इसके नोट्स बना लीजिए, और आपको पता है नोट्स हमेशा इंटरनल असेसमेंट के लिए यूज होते हैं, तो आप साथ साथ में बनाते रहेंगे तो आपको आसानी रहेगी, अदरवाइज बाद में बहुत पाइल अप हो जाएगा, राइट। सो आई ऑल्सो वॉन्ट यू पीपल टू रीड थ्रू योर नोट्स, जब आप बनाते हैं सुनते हैं तो समझ के और उनको लिखिए, ताकि जब मैं आपकी इंटरनल असेसमेंट मंगवाऊं और चेक करूं तो आपको वो पता होने चाहिए कि क्या चीजें हैं, ठीक है। थैंक यू।